Hello everyone, I'm here to teach you a topic frog, which is a very short topic in NCRT class 11th, but NTA has recently added it in NEET syllabus, and in 2025 there was 4 questions asked from a very short topic frog. So generally students skip this topic. As comparison to the other chapters, I find frog a very easy and high scoring topic. So it's like of only 1 to 2 pages, and you can easily score good marks from it. And you can consider it a high weightage as in 2024 25 4 questions were asked, like 16 marks question alone from this particular topic. So let's just start it and make it one of your favorite topics, as generally I also like frog very much, and I revise it very easily, and so I just also want you guys to keep it on your tips and make it a fun and easy topic, and do not skip it before going to the exams. So let's start. Frog belongs to the class Amphibia of the phylum Chordata. The most common species that is found in India is Rana tigrina. Frogs can live in land as well as in water because it's an amphibian that can survive in both land and water. Frogs do not have a they cannot maintain a constant body temperature, and that's why they're cold blooded animals, poikilotherms. And that's why you will not find frogs in peak summer or peak winter, because they either go to the estivation or in hibernation mode to protect their body from extreme heat and extreme cold. You might also notice that the frog changes its color according to the environment in green grasses or in dry land, because they have the ability to change the color. They have that property to mimic the color in their surrounding and environment and protect them from their enemies. So that is the ability to hide them from the enemies, that is called camouflage. And now let's study about the morphology of the frogs. Like, have you ever touched a frog or its skin? You will find that it's very smooth and slippery because it has mucus present in its skin surface, and it's always maintained at a moist condition. The dorsal side, that is the backward side of the frog, it's dark olive green and with irregular spots, but the ventral side, the front side, that is pale yellow and uniform pale yellow. The frog never drinks water, it absorbs through its skin, and it's a very interesting point. You never it's in the water, but it never drinks it, and it just absorbs it through its skin. सो द बॉडी जो होता है फ्रॉग का, वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है टू पार्ट. देर इज नो टेल, देर इज नो नेक. द हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड ट्रंक. एंड द फ्रॉग के जो आईज होते हैं वो बल्ज्ड आउट होते हैं, और उसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं टू प्रोटेक्ट द आईज इन द वाटर. लाइक इन ह्यूमंस ऑल्सो we had dictating membrane, but as humans evolved, it's diminished. It's said that it's in the tiny parts here in the eyes. So humans do not have dictating membrane to protect their eyes in water, so that's why we use those glasses while we are scuba diving or swimming to protect our eyes. And about the hearing capacity of the frog has tympanum, a membranous organ that receives the sound signals. द फोर लिम एंड हैंड लिम्स जो होते हैं फ्रॉग के, वो उसको वॉकिंग में, बरोइंग में, लीपिंग में एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं. तो जो फोर लिम्स होते हैं वो 4 डिजिट्स होते हैं ओनली, बट जो हैंड लिम्ब होते हैं दैट हैव 5 डिजिट्स. एंड जो हैंड लिम्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, लाइक यू हैव सीन द फीट ऑफ द डक, यू कैन से दैट इट्स वेब्ड फीट, and that helps in swimming. So a question can be asked that what is the function of the webbed feet. So you can say that the webbed feet that helps in swimming. And if asked what is the function of both, what helps forelimb and hind limb both, then you can say that walking, swimming, leaping, burrowing, everything. But if it's asked particularly that webbed feet, what's the function of webbed feet, then webbed feet helps in swimming.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉग्स में जो होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मीन्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉग एंड अ फीमेल फ्रॉग। तो जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके पास वोकल सैक्स होते हैं, sound producing vocal sacs, they can produce sounds, and you can see that frog produce sound during breeding season, mating season, to attract the females. And that's the those sounds that you hear in rainy season mostly, turtle, that is the sound produced by male frog to attract the female frogs for breeding purpose and for copulation. And जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके जो 4 डिजिट्स होते हैं, 4 लिम्ब के 4 डिजिट्स होते हैं, उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है 4 लिम्ब का, उसमें एक कॉप्यूलेटरी पैड होता है, एंड दैट हेल्प्स टू होल्ड द फीमेल वाइल कॉप्यूलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। यू विल ऑलवेज सी दिस क्वेश्चन इन योर test or in NEET exam, and in NEET exam particularly in 2026, I guess, yes, in 2026 this year a question was asked that जो तुम्हारा फ्रॉग का जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है उसमें कैसे पता करते हैं। तो मेल में जो होता है देयर वाज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड देन यू हैव टू फाइंड द राइट ऑप्शन, और उसमें था कि वोकल सैक्स होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, और कॉप्यूलेटरी पैड होता है। तो कॉप्यूलेटरी पैड कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स में कॉप्यूलेटरी पैड होता है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। एक छोटा सा पॉइंट है कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉग एंड अ फीमेल फ्रॉग। तो 2026 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे पहचानते। तो उसमें था कि मेल में जो होता है वोकल सैक्स होता है और कॉप्यूलेटरी पैड होता है। पर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉप्यूलेटरी पैड कहाँ होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कॉप्यूलेटरी पैड होता है वो 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट में होता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वेरी फर्स्ट मॉर्फोलॉजी टॉपिक ऑफ द फ्रॉग। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिल्कुल ध्यान से देख करके जाना है, एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। Now let's start with the anatomy of the frog। तो जो frog होता है उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एवरीथिंग दैट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में फ्रॉग का। तो जो फ्रॉग का टंग होता है वो बाई लोब्ड होता है, अनलाइक ह्यूमंस में सिंगल लोब होता है, बट जो फ्रॉग है उसमें बाई लोब टंग होता है। फिर वो जो फ्रॉग होता है वो बाई लोब टंग से जो फूड को होता है वो कैप्चर करता है, और उसके बाद जो होता है माउथ जो होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी जो होता है ओपन होता है ईसोफेगस में थ्रू अ शॉर्ट ट्यूब दैट्स कॉल्ड फेरिंग्स, और फिर ईसोफेगस जो होता है वो ओपन होता है स्टमक में, और स्टमक जो होता है वो खुलता है रेक्टम में, एंड रेक्टम एंड्स इनटू क्लोइका। तो क्लोइका जो होता है वो बाहर जो खुलता है वो क्लोइकल अपर्चर होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है रेक्टम, फिर रेक्टम के बाद आता है एनस, बट फ्रॉग में जो होता है वो रेक्टम आता है और रेक्टम के बाद आता है क्लोइका, एक कॉमन ओपनिंग होता है, एंड एवरीथिंग ओपन्स आउट थ्रू क्लोइका। उसके बाद में क्या होता है कि डाइजेशन होता कैसे है। तो जो स्टमक होता है, स्टमक जो होता है वो HCl सिक्रीट करता है, एंड एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, वॉल्स ऑफ द स्टमक होता है ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। फिर वो जो होता है उसको फूड के साथ में वो उसको मिक्स करता है, एंड दैट फूड मिक्स विद सलाइवा एंड दोज एंजाइम्स, इट्स कॉल्ड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको कि काइम बोलते हैं। और वो जो काइम होता है फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को 2 सिक्रीशन मिलता है, पहला बाइल का सिक्रीशन मिलता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है और प्रोड्यूस करता है लिवर, मतलब लिवर जो है वो प्रोड्यूस किया बाइल जूस जो कि स्टोर्ड हुआ गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर वो आया आपकी इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो बना वो भी जो आता है वो ड्यूडेनम में आता है। तो ये जो दोनों ही सिक्रीशन होता है, जो बाइल का सिक्रीशन हो गया और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो गया, वो जो ड्यूडेनम में आता है कॉमन डक्ट के थ्रू आता है, जिसको कि कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। फिर वो खाना जो होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में,
और इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में न्यूमरस विलाई होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई और विलाई होते हैं जो कि वो जो होता है उनमें ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई का कनेक्शंस होता है, जो कि डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को जो होता है डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो तुम्हारे रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से फिर वो क्लोइका से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। पहला क्या हुआ, बाइल ऑफ टंग से लिया, फिर उसके माउथ बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से आपका वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, और स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन में हुआ। तो इंटेस्टाइन जो होता है वो मेन साइट होता है जहाँ पे कि डाइजेशन होता है। उसके बाद भी जो फ्रॉग होता है उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग एक कार्निवोर है, और कार्निवोर जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, क्योंकि जो होता है मीट को डाइजेस्ट करना वो कंपेरेटिवली ईजी होता है एज कंपेरिजन टू हर्बीवोर्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ अब बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम ये होता है कि जो फैट्स होता है वो बाइल इमल्सिफाई करता है फैट्स को, जो फूड में आपका फैट है उस फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो एंड अब्जॉर्बेबल हो। उसके बाद जो तुम्हारा पैनक्रेटिक एंजाइम्स होता है वो कार्ब्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपलेस्ट फॉर्म। Now moving on to the next topic, respiration. ये one of the favorite topics है for test series of NEET, एंड इसमें 2025 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रॉग जो होता है वो लैंड में कैसे रिस्पायर करता है और वाटर में रेस्ट कैसे रिस्पायर करता है। तो जब फ्रॉग होता है वो जब पानी के अंदर होता है तो वो स्किन से रिस्पायरेशन करता है, और स्किन जो होता है वो एक एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो जो स्किन का रिस्पायरेशन होता है उसको क्यूटेनेशियस रिस्पायरेशन कहते हैं, थ्रू डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर में ऑक्सीजन होता है वो उसके स्किन के थ्रू जो होता है वो उसको रिस्पायर करता है। उसके बाद आता है आपका कि लैंड में जो होता है फ्रॉग कैसे रिस्पायरेशन करता है। तो लैंड में फ्रॉग 3 तरीके से रिस्पायरेशन करता है। पहला बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू, ऑल दीज 3। एंड when the frog is in hibernation और estivation, तो उस टाइम पे जो फ्रॉग होता है वो रिस्पायरेशन करता है अपने स्किन के थ्रू, तो उस टाइम पे भी क्यूटेनिशियस रिस्पायरेशन होता है। और जब फ्रॉग लैंड में होता है और लंग्स का यूज़ कर रहा होता है तो लंग्स का जो रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। नाउ रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता कैसे? जो एयर होता है वो फ्रॉग के नॉस्ट्रल से जाता है, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसके बकल कैविटी में जाता है और फिर वो जाता है लंग्स में। ठीक है, तो जो लंग्स से रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। अब फ्रॉग का जो लंग्स होता है वो कैसा होता है? वो पिंक कलर का होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक होता है। जैसे हेड था, बॉडी डिवाइडेड था हेड और ट्रंक में, तो ट्रंक में भी वो अपर पार्ट में होता है, थोरेक्स रीजन में होता है लंग्स सिचुएटेड। तो ये जो पैराग्राफ है कि फ्रॉग कैसे रिस्पायरेशन करता है स्किन के थ्रू, और आपका व्हेन इट्स इन वाटर, व्हेन इट्स इन लैंड, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और 2025 में आ भी चुका है। तो इस पैराग्राफ को कम्प्लीटली ध्यान से देखना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो जो फ्रॉग का वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं एंड हार्ट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड होता है। अब जो हार्ट होता है फ्रॉग का वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो 2 एट्रियम्स होते हैं ना, सिंगल वेंट्रिकल होता है। और जो हार्ट होता है वो फ्रॉग का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ना हार्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, और वो राइट एट्रियम से जुड़ा होता है जिसको कि साइनस वेनोसस बोलते हैं, और उसमें जो होता है वो ब्लड को रिसीव करता है वो मेजर वेन वेना कावा से। एक और जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कोनस आर्ट्रियोसिस, वो वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है, और दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, वो हार्ट के वेंट्रल साइड में होता है। अब जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से पम्प्ड आउट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और जो ये एक एट्रियल सिस्टम बनाता है जिससे कि ब्लड जो होता है वो सारे पार्ट्स को रीच आउट करता है, और जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा जो होता है वेन्स के थ्रू जो होता है वो
हार्ट में वापस आता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड वेनस सिस्टम। फ्रॉग में जो होता है वो दो स्पेशल वेनस सिस्टम देखने को मिलता है, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है, एंड किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्चुअली होता क्या है, जो इंटेस्टाइन और जो भी डाइजेस्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो ब्लड होता है वो पहले लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो लिवर उसको स्टोर कर लेता है एंड ग्लूकोज। फिर उसके बाद वो जो ब्लड होता है वो लिवर से जाता है आपके हार्ट में टू गेट ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद में जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं उसमें से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जाता है किडनी में, और किडनी में जाने के बाद वहाँ फिल्टर होता है, वहाँ सिक्रीशन होता है, और उसके बाद वो जो ब्लड होता है वो जाता है हार्ट में टू गेट ऑक्सीजनेटेड। तो ये दो स्पेशल कनेक्शन देखने को मिलता है वेनस सिस्टम के, दैट इज़ हेपेटिक पोर्टल वेनस सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, जो कि रीनल पोर्टल जो होता है वो ह्यूमंस में एब्सेंट होता है। जो आरबीसी होता है फ्रॉग का वो न्यूक्लिएटेड होता है, जो कि ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। आरबीसी जो होता है हमारा उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब लिम्फ जो होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो लिम्फ होते हैं उसमें आरबीसी नहीं होते और प्रोटीन्स नहीं होते। और जो आरबीसी होता है फ्रॉग का वो फिर हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, वो गैसेस, वाटर, ये सब को रिस्पेक्टिव साइट्स तक पहुंचाता है ड्यूरिंग सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो अचीव होता है बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। Now moving on to the elimination of nitrogenous waste in frog। तो वो कैसे होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का उसमें पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्लोएका होता है। अब किडनी कैसा होता है फ्रॉग का? वो डार्क होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, और वो पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड में किडनी होता है एंड दैट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली। अब हर एक किडनी जो होता है वो कंपोज होता है, उसमें इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसको कि नेफ्रॉन बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, नेफ्रॉन और यू कैन कॉल इट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टू यूरेटर्स जो होते हैं वो किडनी से एमर्ज आउट होते हैं मेल फ्रॉग में, और जो यूरेटर होता है वो यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, मतलब उसमें यूरिन भी पास होगा एंड स्पर्म ऑल्सो पास इट फ्रॉम दैट। यूरिन पास आउट कराने में भी काम आ रहा है एंड स्पर्म में भी, तो ये यूरोजेनाइटल डक्ट हो गया, और ये होता है क्लोएका में खुलता है। तो यूरिन और स्पर्म का एक ही पाथवे। ना फीमेल्स जो होती है उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें जो एग का होता है और यूरिन का जो पाथवे होता है वो डिफरेंट होता है, और वो क्लोएका में अलग अलग खुलता है। जैसे कि फीमेल्स में जो होता है यूरेटर और ओविडक्ट जो होते हैं वो सेपरेटली ओपन होता है। अब एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो वेंट्रल ऑफ द रेक्टम, मतलब रेक्टम की वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोएका में खुलता है। फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि वो यूरिया को सिक्रीट करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं तुम्हारे वो पहले ब्लड से किडनी में जाते हैं, जहाँ पे वो एक्सक्रीटरी वेस्ट सेपरेट होता है और एक्सक्रीटेड आउट होता है। और जो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फ्रॉग में वो हाईली इवॉल्व्ड होता है। उसमें न्यूरल सिस्टम भी आता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस ऑर्गन्स का बॉडी में वो अचीव होता है बाय हार्मोन्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं। जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि फ्रॉग में देखने को मिलता है वो पिट्यूटरी होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस आता है, पीनियल बॉडी पीनियल होता है एंड पैनक्रियाटिक आइसलेट्स होता है, एड्रिनल एंड गोनाड्स। मतलब जो सारे भी ह्यूमंस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं वो सारा फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी हाईली ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया जिसमें कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हो गए, और ऑटोनॉमिक सिस्टम में आ गया तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इट्स कम्प्लीटली सिमिलर टू ह्यूमन एनाटॉमी। उसके बाद में ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज्ड होता है ब्रेन बॉक्स में। उसके बाद में फ्रॉग में जो होता है वो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो अराइज करता है, जबकि ह्यूमंस में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो फ्रॉग में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो टोटल 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। नाउ ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज होता है एक बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स में। अब क्रेनियम, अब ब्रेन डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है
वो उसमें कंसिस्ट करता है ओल्फैक्टरी लोब्स को, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एंड अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन को। मिड ब्रेन जो होता है उसमें पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होते हैं। हिंड ब्रेन जो होता है वो सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है वो आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम जो होता है उससे मेडुला ऑब्लंगेटा पास करता है और कंटिन्यू करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है आपका वो इंक्लोज होता है वर्टेब्रल कॉलम में। तो ये जो टॉपिक है कम्प्लीटली ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है। ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं और एक्सक्रीटरी कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ये ऑल जो है इफ़ यू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट, व्हाट इज फोर ब्रेन, व्हाट इज मिड ब्रेन एंड व्हाट इज हैंड ब्रेन। 2025 में सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। 2025 में क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा वेन है जिससे कि ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है फ्रॉग में, तो दैट आंसर वाज वेना कावा। दूसरा एक क्वेश्चन था वो रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम जो कनेक्शन होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो रीनल पोर्टल कनेक्शन जो होता है वो किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होता है। उसके बाद 2026 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि पूरा स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस थे, और उसमें ये था पहला कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, तो ये एक पॉइंट सही है कि हेपाटिक जो होता है वो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। दूसरा ये था कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो ब्रेन से अराइज करता है, जो कि गलत है। फ्रॉग में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। तीसरा ऑप्शन जो था वो यूरेटर और ओविडक्ट जो होता है वो सेपरेटली ओपन होता है इन फीमेल फ्रॉग में, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो यूरेटर और ओविडक्ट होता है वो सेपरेटली ओपन होता है। उसके बाद एक ऑप्शन था हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स, तो ये गलत है क्योंकि हिंड ब्रेन नहीं, मिड ब्रेन जो होता है उसमें सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड ऑप्टिक लोब्स होता है। उसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन था कि साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, तो बात सही है कि साइनस वेनोसस जो होता है राइट एट्रियम से जुड़ता है, और कोनस आर्टेरियोसस जो होता है वो वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। तो एनाटॉमी से मिला करके आपका 3 से 4 क्वेश्चन था जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में आपको दिया गया। ना टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गेन्स, तो जो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जो वो टच के लिए होते हैं सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज होता है, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम जो होता है वही जो होता है इंटरनल ईयर्स के साथ रिप्रेजेंट होता है एज ईयर, मतलब फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलता है। अब इन सब सेंस ऑर्गन्स में से जो आई और ईयर होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, बट बाकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो दैट इज़ जस्ट सेलुलर एग्रीगेट्स अराउंड द नर्व एंडिंग्स, मतलब वो उतने वेल डिफाइंड नहीं होते, दैट इज़ बस सेल्स होते हैं जिनमें कि नर्व का सप्लाई होता है। अब जो होता है उसके पास पेयर ऑफ आईज होता है जो कि सिचुएटेड होता है ऑर्बिट में इन स्कल, और जो आईज होता है वो सिंपल आईज होता है सिंगल यूनिट का, जैसे कि कॉकरोच होते हैं वो जो होते हैं उनके पास कंपाउंड आईज होते हैं, बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग में सिंगल आई होता है, सिंपल आई होता है और सिंगल यूनिट का होता है। ईयर्स जो होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ टिम्पैनम जो होता है वो देखने को मिलता है एक्सटर्नली। अब ईयर का यहाँ पे 2 फंक्शन होता है, वो हियरिंग के साथ साथ बॉडी में बैलेंसिंग का भी काम करता है। फ्रॉग जो होता है उसका वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं उसमें पेयर ऑफ येलोइश ओव्यूइड टेस्टिस होता है जो कि किडनी से जुड़ा हुआ होता है बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोरिकियम। मेसोरिकियम के थ्रू जो किडनी होता है और जो टेस्टिस होता है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। अब वासा एफरेंशिया जो होता है वो 10 से 12 होता है और वो टेस्टिस से निकलता है और किडनी में खुलता है थ्रू बिडर्स कैनाल, ठीक है। बिडर्स कैनाल के थ्रू वो वासा एफरेंशिया किडनी में खुलता है। फाइनली वो जो होता है वो यूरोजेनाइटल डक्ट में जाकर के मिल जाता है और फिर किडनी से फिर वो ओपन होता है इनटू क्लोइका में। क्लोइका क्या है? क्लोइका एक स्मॉल चैम्बर है जिससे कि फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म ये सब जो होता है बॉडी के बाहर जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ओवरी जो होता है किडनी के पास में होते हैं बट कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है ओविडक्ट और किडनी के बीच में। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज जो होता है, ओवरी से एक ओविडक्ट निकलता है और वो क्लोइका में अलग से खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर का सिक्रीशन अलग है फीमेल में और ओविडक्ट का सिक्रीशन अलग है। एक मैच्योर फीमेल जो होती है वो 2500 से 3000 ओवा को एट अ टाइम ले करती है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है जो कि पानी में होता है।
जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, और जो टैडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस। अब जो फ्रॉग होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाता है और हमारे क्रॉप्स को बचाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है हमारे फूड वेब और फूड चेन में। कुछ प्लेसेस में जो फ्रॉग होते हैं उनके लेग्स को एज अ फूड भी खाया जाता है। तो ऑल ओवर फ्रॉग इज़ अ वेरी बेनिफिशियल insect for human mankind. I hope you understood frog well, and I hope you can do all the question from frog.